آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ اب آپ محمود احمد خان سے خبریں سنیے۔ پہلے آج کی سرخیوں پر ایک نظر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ترقیاتی اہداف کو حاصل کرنے کے لیے مرکز اور ریاستوں کے مابین بہتر تال میل اور اشتراک پر دیا زور۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے نیتی آیوگ کی میٹنگ کے دوران جموں کشمیر کی ترقیاتی ضروریات اور چیلنجوں کو کیا اجاگر۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آثار شریف درگاہ حضرت بل میں ایک گیسٹ ہاؤس کا رکھا سنگ بنیاد۔ سماج کو امن دشمن عناصر سے چھٹکارا دلانے پر دیا زور۔ اور سری نگر سے حج پروازوں کی روانگی کا سلسلہ کل سے دوبارہ ہوگا شروع۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے تمام ریاستوں سے کہا ہے کہ وہ کم سے کم ایک سیاحتی مقام کو عالمی معیارات کے مطابق ترقی دیں۔ نئی دلی میں آج نیتی آیوگ کی 10ویں گورننگ کونسل میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے تیز تر ترقیاتی عمل کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ مرکز اور ریاستوں کے اشتراک سے کسی بھی ہدف کو حاصل کرنا ناممکن نہیں ہے۔ انہوں نے وکست بھارت کو 140 کروڑ عوام کے احساسات سے تعبیر کیا۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کو ورک فورس میں مربوط کرنے کے لیے قوانین اور پالیسیاں مرتب کی جانی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بھی نئی دلی میں منعقدہ نیتی آیوگ کی گورننگ کونسل میٹنگ میں شرکت کی۔ انہوں نے میٹنگ کے دوران جموں کشمیر کی ترقیاتی ترجیحات کو اجاگر کرتے ہوئے خطے کو درپیش چیلنجوں کا مقابلہ کرنے اور شمولیاتی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے مرکزی سرکار سے بھرپور تعاون طلب کیا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج آثار شریف درگاہ حضرت بل میں ایک گیسٹ ہاؤس کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پچھلے چند برسوں کے دوران زیارت گاہ پر زائرین کے لیے بنیادی سہولیات میسر رکھنے میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس روحانی مرکز پر زائرین کی آمد اور ان کے لیے اس متبرک مرکز پر عبادت کرنے میں کافی آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ سماج کو امن دشمن عناصر سے چھٹکارا دلانے میں اپنا کلیدی رول ادا کریں۔ اس موقع پر جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر سعید درخشاں اندرابی بھی موجود تھیں۔ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل کھنمو کے ممبر اور حج کمیٹی آف انڈیا کے رکن انجینئر اعجاز حسین نے آج راج بھون سری نگر میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے ساتھ ملاقات کی اور انہیں حج کمیٹی آف انڈیا کی طرف سے حج کے دوران کیے جا رہے اقدامات کے بارے میں جانکاری دی۔ کشمیر کے اربن لوکل باڈیز کی کوارڈینیشن کمیٹیوں کے سابقہ صدور کے ایک وفد نے آج ایل جی منوج سنہا کے ساتھ ملاقات کی اور عوامی نوعیت کے متعدد معاملات ان کی نوٹس میں لائے۔ آپریشن سندور کے دوران بھارتی فوجیوں کی بہادری اور بے مثال کارکردگی کو اجاگر کرنے کے لیے ترنگا ریلیوں کا انعقاد جاری ہے۔ اس سلسلے کے تحت آج بی جے پی کشمیر کی طرف سے قاضی گنڈ میں سہ پربھاری کشمیر رفیق وانی اور بی جے پی مہیلا ونگ کی نائب صدر رومیسا رفیق کی قیادت میں ایک ترنگا ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ بعد میں ہمارے اننت ناگ کے نمائندے تصدق رشید کے ساتھ بات کرتے ہوئے رومیسا رفیق نے کہا، پہلگام میں ایک واقعہ پیش آیا جس میں ہمارے 26 پریٹک شہید ہو گئے، تو ان شہیدوں کو شردھانجلی دینے کے لیے اور ہماری جو پہلا ملٹری فورس ہے، نیوی فورس ہے، ایئر فورس ہے، ان کو جو ہمارا ایک مشن چلا آپریشن سندور، ان کو حوصلہ بڑھانے کے لیے ہمارے جو کشمیر کے بی جے پی کے کاریہ ہے، جو عام ویکتی ہے، جو سول سوسائٹی ہے، وہ ان کے لیے نکلے ہیں، ان کا حوصلہ افزائی بڑھانے کے لیے نکلے ہیں۔ جو ہمارے آرمی جوانوں نے ایک آپریشن سندور چلایا، اس آپریشن سندور کو ہم سلام کرتے ہیں۔ ادھر ہیرا نگر قصبے میں بھی آج ایم ایل اے وجے شرما کی قیادت میں ایک ترنگا ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر ریلی کے شرکا نے ہتھیار بند فوج کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے آپریشن سندور کے دوران ان کی بہادری اور عزم کو اجاگر کیا۔ آپریشن سندور کی کامیابی پر قوم ہتھیار بند فوج کو خراج تحسین پیش کر رہی ہے۔ آکاشوانی نیوز نے بھی بہادر فوجی جوانوں کو خراج پیش کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ آج ہم پرمویر چکر ایوارڈ یافتہ لانس نائک البرٹ ایکا کو یاد کر رہے ہیں۔ پیش ہے آکاشوانی دلی کے نمائندے کی یہ رپورٹ۔
1942 में रांची में जन्मे लांस नायक एल्बर्ट एक्का दिसंबर 1962 में 14 गार्ड्स में भर्ती हुए थे। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान 14 गार्ड्स को पूर्वी क्षेत्र में अगरतला से 6.5 किलोमीटर पश्चिम में गंगा सागर में एक पाकिस्तानी ठिकाने पर कब्जा करने का काम सौंपा गया था। 14 गार्ड्स ने दुश्मन के ठिकानों पर हमला किया। लांस नायक एक्का ने देखा कि एक दुश्मन की मशीन गन बंकर से घातक गोलीबारी कर रही थी। अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने बंकर पर हमला किया और दुश्मन के 2 जवानों को मार गिराया। युद्ध के दौरान लगी चोटों के कारण लांस नायक एल्बर्ट एक्का शहीद हो गए। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्र उन्हें नमन करता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। चिनार कोर के कमांडर ने बारामूला में लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा करके वहां ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने इस मौके पर फौजियों के साथ बात की और उनके अज़्म और पेशावारियत की तारीफ की। डायरेक्टर जनरल पुलिस नलिन प्रभात ने आज हिफाजती अमले की मुख्तलिफ एजेंसियों की एक मीटिंग के दौरान आने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में किए जा रहे सलामती इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने अफसरों को हिदायत दी कि वो बेहतर तालमेल के साथ काम करके बिला खलल यात्रा को यकीनी बनाएं। लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर और सीनियर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने पुंछ जिले में सरहद पार की शेलिंग से मुतासरा इलाकों का आज दौरा किया। उन्होंने वहां मुतासरा कुंभों के साथ बात की और उनके मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। राहुल गांधी ने मुतासरीन के साथ हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा कि उनके मामलात और मुतालबात को कौमी सतह पर उजागर किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा और AICC के जनरल सेक्रेटरी गुलाम अहमद मीर भी उनके हमरा थे। समाजी बहबूद के वजीर सकीना इत्तू ने कहा है कि उनकी हुकूमत जम्मू कश्मीर में जिस्मानी तौर खास अफराद की बहबूदी को यकीनी बनाने की वादाबंद है ताकि वो इज्जत और वक़ार के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। आज कुलगाम में इस तबके के लोगों में ज़रूरी साजो सामान तकसीम करने की एक तकरीब में शिरकत करने के बाद उन्होंने कहा कि हुकूमत लोगों को हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। बाद में हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पडरू के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, इन कैंप को मुनक्कद करने का मकसद ये है कि डोर स्टेप्स पे इनको ये फैसिलिटीज हैं दी जाए। गवर्नमेंट चाहती है कि इन लोगों को जिस भी तरह से जाए, वो पेंशन का इजाफा है जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने बजट में ऑलरेडी किया हुआ है, और दूसरा ये कैंप करने का मकसद यही है इन लोगों को जो फैसिलिटीज हो अब वो इनको फराहम हो सके ताकि अपनी लाइफ जो है उसको नॉर्मल तरीके से बसर कर सके। इनके बहुत मुश्किलें हैं, डिपार्टमेंट चाहता है इन मुश्किलों को आसान करें, इनके लिए जो भी वसाइल हम दे सकते हैं ताकि इनको इन स्कीम से फायदा मिल सके। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने आज प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की स्टेट लेवल सैंक्शनिंग कमेटी की एक मीटिंग के दौरान 75 करोड़ 80 लाख रुपए के वाटर शेड डेवलपमेंट मंसूबे को मंजूरी दी। चीफ सेक्रेटरी ने मुतल्लिका अफसरों को हिदायत दी कि वो इस फ्लैगशिप स्कीम के तहत मुख्तलिफ कामों को तरजीहात में शामिल करें। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन एयर और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। श्रीनगर से आज़मीन हज की सफ़र महमूद पर रवानगी का सिलसिला कल से दोबारा शुरू हो रहा है। 7 मई को मनसूख हुई परवाज़ के ज़रिए से रवाना होने वाले आज़मीन अब कल हज बैतुल्लाह पर रवाना हो रहे हैं। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर शुजात अहमद कुरैशी ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर को तफसीलात देते हुए कहा, जो हमारी 6 फ्लाइट कैंसिल हुई थी जो अभी रिस्टोर नहीं हुई, वो अब इंशाल्लाह कल से यानी 25 मई से उनके जाने का सिलसिला शुरू होगा। यहाँ से ये इंडायरेक्ट फ्लाइट होगी। पहले हुज्जाज किराम को यहाँ से दिल्ली लिया जाएगा 2 फ्लाइटों के जरिए। एक में 140 हुज्जाज हैं, दूसरे में 165। हुज्जाज किराम से दरख्वास्त है कि वो एहराम जो है वो अपने हैंड बैग में रखें, क्योंकि एहराम उन्हें श्रीनगर एयरपोर्ट पे ही बांधना है। एहराम की नियत वो इंशाल्लाह मीकात के पहुँचने से पहले करेंगे, लेकिन एहराम वो श्रीनगर एयरपोर्ट पे ही बांधेंगे। जो एक पहली फ्लाइट है 140 हुज्जाज किराम की, उनको 3 बजे रिपोर्ट करना है, और जो दूसरी है उसको 3:30 बजे उन हुज्जाज किराम को रिपोर्ट करना है। 5 फ्लाइटें जो रह गई, उनकी एक फ्लाइट है 26 को, एक 27 को, और 2 फ्लाइट्स जो हैं वो 30 और 31 को हैं।
उधर भारत से हज बैतुल्ला पर रवाना हुए आज़मीन ने सऊदी अरबिया में भारतीय हुकूमत की तरफ से किए गए इंतजामात और सहूलियात की सताइश की है। अक़लियती उमूर की वजारत ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा है कि वजारत हर एक हज आज़िम का सफ़र आसान बनाने और सऊदी अरबिया में आला दर्जे की सहूलियात दस्तियाब कराने में कोई भी दक़ीक़ा फ़रोग़ुज़ाश्त नहीं कर रही है। वजारत ने कहा है कि भारतीय हज मिशन आज़मीन को तिबी निगहदाश्त की बेहतर सहूलियात फराहम कर रहा है। आज शिज़ोफ्रेनिया बीमारी से मुतल्लिक बेदारी पैदा करने का आलमी दिन है। आलमी सेहत तंजीम के मुताबिक दुनिया भर में लाखों लोग इस जहनी बीमारी के शिकार हैं। आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बादामवारी श्रीनगर में साइकेट्री शोबे के सरबरा डॉक्टर मोहम्मद मकबूल ने इस बीमारी के बारे में कहा। पेशेंट को लगता है कोई कुछ शक होता है, कोई मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। इसके टाइप बहुत है डिल्यूजन के। जैसे उसको लगता है मेरे थॉट्स कोई ले रहा है या कोई इंसर्ट कर रहा है मेरे दिमाग में थॉट्स, ऐसी चीजें हो रही और हेलुसिनेशंस होती हैं। तो फिर वो अपने साथ बात भी करता है। तो ये मेन फीचर्स होते हैं। कई पेशेंट्स हमारे पास ऐसे भी होते हैं कि वो फिर घर का खाना नहीं लेते हैं, बोलते हैं अन्य इसमें पॉइजन मिला है। इलाज इसमें यही होता है कि इसमें टाइप्स अलग होते हैं। जैसे पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया है, कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया है, हेमिफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया है, वो टाइप्स है, 5-6 टाइप्स हैं। बेसिक हम देखते हैं कि कौन सा टाइप है और ब्रॉडली स्पीकिंग इसमें हम एंटीसाइकोटिक्स देते हैं जो साइकोसिस को कम करता है। अगर ये दवाई अच्छी तरह से लेंगे तो ठीक रहते हैं, मेंटेन रहते हैं, बट दे नीड ट्रीटमेंट, ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग दे नीड ट्रीटमेंट। बेसिकली ऐसे पेशेंट्स मैक्सिमम खुद आते ही नहीं है हॉस्पिटल, इनको फैमिली ही लाती। और कुछ ऐसे भी पेशेंट्स होता है जिनको थ्रू पुलिस लाना पड़ता है। बाय प्रॉक्सी अटेंडेंट का नाम लिखते हैं, किसने क्या बोला, फिर हिस्ट्री लिखते हैं थोड़ा, फिर उसको सिम्टम्स लिखते हैं, तो उनको बोलते हैं। फिर जब वो ट्रीटमेंट वो स्टार्ट करते हैं, बाय प्रॉक्सी जो ट्रीटमेंट हमने लिखा होता है उसको फर्क आता है, देन दे कम टू द हॉस्पिटल। जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस महकमा ट्रैफिक निज़ाम में माकूलियत लाने के लिए संजीदगी के साथ इक़दामात कर रहा है, जिनका मकसद सफ़र को आसान बनाने के साथ साथ सड़क हादसात पर काबू पाना भी है। इस हवाले से SSP ट्रैफिक श्रीनगर एजाज अहमद भट्ट ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए अपने तासुरात का यूं इजहार किया। हमारी सोसाइटी जो है समझदार सोसाइटी है। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। हर एक आदमी को, हमारी फैमिलीज में ये एजुकेशन देनी पड़ेगी। हमें अपने जो हैबिट्स भी चेंज करने पड़ेंगे, हमें अपना टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, प्रेडिक्शन भी करना पड़ेगी किसी डेस्टिनेशन पे विद इन पॉसिबल कंस्ट्रेंट्स। जो भी घर से निकलता है किसी काम के लिए, वो ये नहीं सोचता है कि आगे जो ट्रैफिक मुझे इस वक्त मिलेगा वो किस तरह का मिलेगा। अकॉर्डिंगली वो अपना रूट चेंज कर सकता है, अपना टाइमिंग चेंज कर सकता है। ये तो हमें हैबिट्स में लाना है ना। इसमें ट्रैफिक पुलिस क्या कर सकता। सामीन SSP ट्रैफिक एजाज अहमद भट्ट के साथ एक तफसीली इंटरव्यू आप कल रात 8:30 बजे आकाशवाणी न्यूज़ से समाअत कर सकते हैं। उनके साथ हम कलाम होंगे आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के सरबरा तारिक राथर। पुलिस ने मुनशियात के खिलाफ कार्रवाई को जारी रखते हुए आज वागब क्रॉसिंग पर खदीपुरा रफियाबाद के फारूक अहमद भट्ट नामी ड्रग स्मगलर को गिरफ्तार किया है। उधर पुलिस ने अनंतनाग में कई मकामात पर छापे डालकर काफ़ी मिकदार में मुनशियात जब्त की हैं। अनंतनाग ज़िले के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में आज नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत कई बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया ताकि समाज को मुनशियात की बिद्दत से मुकम्मल तौर पाक किया जा सके। जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के स्पीकर अब्दुर्रहीम राथिर ने कहा है कि यूसमर्ग को गुलमर्ग की तर्ज पर एक बेहतरीन सयाती मकाम के तौर पर तरक्की दी जाएगी। वो आज नागबल चार शरीफ में 1 करोड़ 88 लाख रुपए की लागत से तामीर किए गए प्राइमरी हेल्थ सेंटर का इफ्तिताह करने के बाद तकरीब से खिताब कर रहे थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने आज श्रीनगर में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत लोगों के मसाइल को हल करने और उनके मयारी ज़िंदगी में बेहतरी लाने की तरफ तवज्जो मरकूज किए हुए है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर सत शर्मा, असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा और कई दीगर लीडरों ने करना टंगडार का दौरा करके वहां सरहद पार की शेलिंग से मुतासरीन का जायजा लिया। सत शर्मा ने उन्हें यकीन दिलाया कि पार्टी उनके दुख दर्द में शाना बशाना खड़ी है। उधर कुटवा में आज बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल की सदारत में पार्टी कारकुनों की एक मीटिंग मुनक्कद हुई, जिस दौरान जिले में पार्टी सरगर्मियों और हिकमत अमलियों पर गौर किया गया।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 122वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम तर नेटवर्क, AIR न्यूज़ वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर नश्र किया जाएगा। इस प्रोग्राम को AIR, DD न्यूज़, वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर और इत्तलात व नशरियात के YouTube चैनलों पर भी बराह रास्त नश्र किया जाएगा। आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर जम्मू कश्मीर की रजिस्टर्ड सियासी जमातों और समाजी व सकाफती अंजुमनों को इत्तला देते हैं कि वो अपने प्रेस नोट और ऑडियो बाइट्स न्यूज़ रूम के ईमेल ID radiokashmir@gmail.com पर शाम 5 बजे तक भेजा करें ताकि इन्हें मौजूद तरीके पर खबरों के बुलेटिनों में शामिल किया जा सके। कुलगाम के मुख्तलिफ इलाकों में आज जालाबारी हुई जिससे वहां के मेवा बागात को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। समाजी बहबूद के वजीर सकीना यतू ने जालाबारी से हुए नुकसान पर तशवीश का इजहार करते हुए जिला इंतजामिया को हिदायत दी कि वो नुकसान का जायजा लेकर अपनी रिपोर्ट फौरी तौर से हुकूमत को पेश करें। शोपियां से हमारे नुमाइंदे जान निसार अहमद ने खबर दी है कि जिले के मुख्तलिफ इलाकों में भी आज सपहर शदीद बारिशें और जालाबारी हुई जिसकी वजह से खड़ी फसलों और मेवा बागात को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू कश्मीर ने DC ऑफिस श्रीनगर में इस वक्त नाजिर के ओहदे पर तैनात इम्तियाज़ अहमद भट्ट के खिलाफ अपनी जायज़ आमदनी से ज़्यादा असासे जमा करने की पादाश में एक केस दर्ज किया है। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख NCC डायरेक्टरेट के एडिशनल डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल AS बेवली ने आज NCC ट्रेनिंग एरिया नगरोटा का दौरा करके वहां जारी सालाना तरबियती कैंप के दौरान NCC कैडेटों के साथ बातचीत की और इंतजामात का जायजा लिया। मजलिसुन निसा सोपोर की तरफ से आज टैगोर हॉल श्रीनगर में एक अदबी तकरीब का इनकाद किया गया जिसमें साबिक एडिशनल डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन केंद्र और अदबी मरकज कामराज के सरपरस्त डॉक्टर रफीक मसूदी के कश्मीरी शेरी मजमूए की रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की से दरमियाना बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 27.5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38.6 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 28.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलू आफ्ताब सुबह 5:23 और गुरूब आफ्ताब शाम 7:33 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। इस वक्त हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।